बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप चीन के तारीखी दौरे में है। चीनी सदर से मुलाकात के लिए पीपल्स हाल पहुंचे, जहां इनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि अमेरिका को 250वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद भी दी गई। इस मौका पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। चीनी सदर ने अमेरिकी सदर का खैर मकदम किया, काबीना से तारुफ भी करवाया, जिसके बाद चीनी और अमेरिकी सदर ग्रेट हॉल ऑफ दी पीपल्स की इमारत के अंदर चले गए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि तमाम आदमी बहरानों का हल सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात में है। इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी के असूलों पर चलना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि आलमी अमन और माशी तरक्की को बरकरार रखना दोनों ममालिक की तारीखी जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात पर हैं। इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी के असूलों पर चलना होगा। इसी के साथ साथ इस मौका पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि आज सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करना बाइसे एजाज़ है और आपका दोस्त होना एजाज़ की बात है। अमेरिकी सदर ने कहा कि वो इस दौरे पर दुनिया के बेहतरीन कारोबारी रहनुमाओं को साथ लाए हैं। बाज़ लोगों ने इस मुलाकात को अब तक की सबसे बड़ी सिमत करार दिया है और इस इजलास के मुंतज़िर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि सदर शी जिनपिंग के साथ ताल्लुकात हमेशा से इंतहाई शानदार रहे हैं। तारीखी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तजारत पर होगा। दोनों ममालिक के दरमियान आने वाली कई दहाइयों तक बेहतरीन और मजबूत ताल्लुकात कायम रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि हमारे ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहेंगे, जबकि हम भी मुश्किलात आए और हमने मिलकर इन्हें हल किया। मैं आपको कॉल करता था और आप मुझे कॉल करते थे। लोग नहीं जानते कि जब भी हमें कोई मसला दरपेश हुआ, हमने जल्दी हल कर लिया। Can we, in the interests of the well-being of our two peoples and the future of humanity, build a brighter future together for our bilateral relations? These are the questions vital to history, to the world, and to the people. They are the questions of our times that you and I need to answer as leaders of major countries. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have. अब आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां अज़रबैजान की यौम आज़ादी के मौके पर अब्दुल अलीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Of the preferential trade agreement and the transit trade agreement stands as a testament to his practical and forward-looking approach to regional connectivity. His decision to exempt custom duties on rice import is not just an economic gesture, but a sign of deep-rooted trust in Pakistani brothers. The exchange of high-level visits between the two countries has also provided strong incentive to the future development of bilateral cooperation. Ladies and gentlemen, today our two brotherly nations are witnessing a new era of connections in its true sense. The expansion of direct air links has brought our people closer than ever. In the last 3 years, this has grown tremendously. In the last year alone, around 90,000 Pakistanis traveled to Azerbaijan, experiencing first-hand legendary hospitality and beauty of Azerbaijan land. It is my firm belief that as we strengthen these bridges, both in our skies and through our trade agreements, the distance between Islamabad and Baku will continue to vanish. Our partnership is not merely defined by the bridges of trade or the corridors of connectivity, but by the courage we show in standing together when it matters the most. Pakistan has always remained a steadfast advocate for Azerbaijan's sovereignty, just as we stood together on the issue of Karabakh. The people of Pakistan
carry a deep sense of gratitude for Azerbaijan's principled and consistent voice, championing the fundamental rights of our Kashmiri brothers and sisters on every platform that matters. This bond has been further strengthened during the trials of the recent past. Last year, during the Mark-e-Haq, when our nation faced a moment of great challenge, Azerbaijan did not merely offer diplomatic words, but they provided us with the strength of moral and brotherly solidarity that will never be forgotten. On behalf of the government and the people of Pakistan, I extend my heartfelt thanks to people and the government of Azerbaijan for standing as a bulwark of supporting during this conflict. We will never forget your unwavering support. Thank you very much. आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मौसूलात अब्दुल अलीम खान आज़रबाईजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपने कहा कि 1991 में आज़रबाईजान की आज़ादी से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई जहत मिली। मार्क-ए-हक़ में आज़रबाईजान ने बहुत साथ दिया। आज़रबाईजान के लिए पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। आज़रबाईजान के लिए पाकिस्तान की तरफ से खैर सगाली का पैगाम है। दोनों मुल्कों के दरमियान ज़मीनी ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। मुश्किल की घड़ी में आज़रबाईजान के दिए हुए साथ को याद रखते हैं। What I've learned about fraud is that it always has two fundamental victims. तो अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान की ताज़ा तजवीज़ को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जेडी वेंस ने कहा कि मेरा ख्याल है कि हम पेशरफ्त कर रहे हैं। बुनियादी सवाल ये है कि क्या हम इतनी पेशरफ्त कर पाएंगे जो सदर की मुकर्रर करदा डेडलाइन को पूरा कर सकेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सदर ट्रंप की रेडलाइन बिल्कुल वाज़ेह है। उन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि ऐसे मौसर हिफाजती इक़दाम किए गए हैं जिनके तहत ईरान कभी भी जोहरी हथियार हासिल ना कर सके। Fraud is that it always has two fundamental victims. The first victim is the American taxpayer, who is generously paid into these programs in an effort to give their fellow citizens a leg up, but it also has as its victims the people who are meant to benefit from these programs, who are not able to benefit, or maybe are benefiting less because of what a disaster some of the fraud has wrought in these programs. And let me just give you a few concrete examples of what we're worried about, of what we're targeting, and also what we're going to do to solve some of these problems. So, first, we're announcing that the federal government is deferring $1.3 billion in Medicaid reimbursements from the state of California. And the simple reason is because the state of California has not taken fraud very seriously, and because of that, we see a lot of the consequences that I just referenced. इसी के साथ साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका चाहता है कि मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। एक बयान में मार्को रूबियो ने कहा कि चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दाम से पीछे हटने पर आमादा करे। चीन के मफाद में है कि वो बहरान के हल में किरदार अदा करे। तहम अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का मज़ीद कहना था कि चीन के अपने बहरी जहाज़ अपना हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। चीन मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने अपना हुर्मुज़ में ईरान के इक़दाम पर पाबंदियों की धमकी देने वाली अमरीकी हमायत याफ्ता मुजव्वज़ा करारदाद को मुज़ाहिका खेस और गुमराह कुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में ईरानी मिशन की जानिब से कहा गया कि वाशिंगटन की ये कोशिश कि करारदाद के शरीक ममालिक को वसी आलमी हमायत की इलामत के तौर पर पेश किया जाएगा बिल्कुल मुज़ाहिका खेस और गुमराह कुन है। बयान के मुताबिक ज़बरदस्ती शामिल किए गए शरीक ममालिक वाशिंगटन के ईरान के खिलाफ जारी बैनुल-अक़वामी तौर पर गैर कानूनी इक़दाम को जायज़ नहीं बना सकते। ईरानी मिशन का कहना था कि इन इक़दाम में समुद्री नाकाबंदी, ईरानी तजारती जहाज़ों पर हमले और इनकी गैर कानूनी ज़ाब्तगी के लिए अमले को यरगमात बनाने जैसे इक़दाम शामिल हैं जो कज़ाकी से मुशाबहत रखते हैं। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा है कि इन्होंने ईरान का मामला एक भी मिसाइल फायर किए बगैर कामयाबी से अंजाम दे दिया था।
अपने एक बयान में साबिक अमरीकी सदर ने कहा कि हम अपने दौरे हुकूमत में ईरान से 97% अफसूदा यूरेनियम निकालने में कामयाब हुए थे। उनका कहना था कि ना हमें ईरान में बहुत से लोगों को कत्ल करना पड़ा और ना ही अपना हुर्मत बंद करना पड़ी। ईरान जंग के अहदाफ अभी हासिल नहीं हुए। तो दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इसराइल के साथ गठजोड़ करने वाले से हिसाब लिया जाएगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अपने बयान में मज़ीद कहना था कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया है कि ईरानी क्वालिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। आगे चलते हैं और आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से किए गए दावे की तरदीद कर दी और कहा कि बिन्यामीन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जंग के दौरान खुफिया तौर पर अमारात का दौरा किया। अमाराती सरकारी खबर रसां इदारे वॉम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात उन खबरों की तरदीद करता है जिनमें कहा जा रहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा किया या अमाराती सरजमीन पर किसी इसराइली फौजी वफ़द का इस्तकबाल किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात एलानिया हैं। ये ताल्लुकात किसी खुफिया या पोशीदा इंतजामात पर मबनी नहीं, लिहाजा किसी भी गैर एलानिया दौरे का खुफिया इंतजामात से मुतल्लिक दावे बेबुनियाद हैं। जब तक कि इनकी तस्दीक अमारात के मुतल्लिका सरकारी हुकाम की जानिब से ना की जाए। अमाराती हुकूमत ने ज़राए अब्लाग पर जोर देते हुए कहा कि मीडिया गैर मुसद्दिका मालूमात नशर करने से गुरेज करे और सियासी तासुर पैदा करने के लिए बुनियाद खबरों का सहारा ना ले। ख्याल रहे कि यह तरदीद ऐसे वक्त में सामने आई जब बैनुल अक़वामी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि नेतन्याहू ने ईरान के साथ जंग के दौरान खुफिया तौर पर अमारात का दौरा किया और सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात की है। दूसरी जानिब वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड इजरा के लिए चीन रवाना हो गए। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान पहली बार पांडा बॉन्ड के जरिए चीनी सरमाया मार्केट तक रसाई हासिल करेगा। प्रोग्राम का मजमूई हुजम $1 अरब, इब्तदाई उजरा $250 मिलियन होगा। आपको बताते चलें कि इब्तदाई उजरा $250 मिलियन होगा। इसी तरह पांडा बॉन्ड अजरा को ADB और AIB की मामनत हासिल होगी। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान के पहले पांडा अजरा के लिए चीन रवाना हो गए हैं। वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान पहली बार पांडा के जरिए चीनी सरमाया मार्केट तक रसाई हासिल करेगा। प्रोग्राम का मजमूई हुजम $1 अरब, इब्तदाई अजरा $250 मिलियन होगा। इस तरह पांडा अजरा को ADB और AIIB की मुआवनत हासिल है, जिसे पाकिस्तान की मालियाती अमली में अहम पेशरफ्त करार दिया गया है। हुकाम का कहना था कि हुकूमत मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग की जानब बढ़ रही है। पांडा आलमी सरमायाकारों के पाकिस्तान पर इत्मीनान का मजहर है। चीन की सरमाया मार्केट दुनिया की बड़ी और गहरी कैपिटल मार्केट में शामिल है। वज़ारत खजाना ने कहा कि पांडा में पाकिस्तान के फाइनेंसिंग ज़राए में तनू आएगा। बीजिंग में जबकि चीन इक़्तिसादी ताउन में नई पेशरफ्त होगी और माशी सफारतकारी का अहम संग मील साबित होगी। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन हमें अपडेट कर रहे थे, इस बारे में आपका शुक्रिया। आगे चलकर आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी अमीर मौलाना फजल रहमान 6 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। तर्जुमान GUI के मुताबिक मौलाना फजल रहमान आज मंगू पीर रोड पर मुनक्किदा वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, जबकि कराची दौरे के दौरान वो पीर साहिब पगाड़ा कामरान टेसूरी समेत मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान वो मैट दी प्रेस में शरीक होंगे और जमायती अहदेदारान, कारोबारी शख्सियात और सियासी समाजी अफराद से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान ने मजीद बताया कि एयरपोर्ट पर कायद सिंध इलामा राशिद महमूद सोमरू, इलामा नासिर महमूद सोमरू, मोहम्मद असलम गोरी, कारी मोहम्मद उस्मान, मौलाना मोहम्मद गियास और दीगर जमाती अहदेदारान ने मौलाना फजल रहमान का इस्तकबाल किया है।
अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि तर्जुमान ने मजीद बताया कि एयरपोर्ट पर कायद सिंध, इलामा राशिद महमूद सोमरू, इलामा नासिर महमूद सोमरू, मोहम्मद असलम गोरी, कारी मोहम्मद उस्मान, मौलाना मोहम्मद ग्यास और दीगर जमाती अहदेदारान ने मौलाना फजल रहमान का इस्तकबाल किया। रुक करेंगे पंजाब का, जहां गंदम जखीरा अंदोज और माफिया सरकारी अमल। पंजाब में गंदम और आटा का बहरान संगीन हो गया है। जराये के मुताबिक पंजाब में जखीरा अंदोजों ने फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी मुअत्तल कर दी। फ्लोर मिल्स को गंदम ना मिलने की वजह से 20 किलो आटे का थैला 1810 से 2350 रुपए का हो गया। जखीरा अंदोजों के ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जबकि शहर में गंदम और आटे के बहरान का संगीन होने का इल्जाम आयद हुआ है। इसी पर जाने के डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी बताइएगा, ये क्या मामला है और क्या अपडेट्स है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब में आटे और गंदम का जो बहरान है वो शिद्दत अख्तियार कर गया, जबकि जखीरा अंदोजों और माफिया सरगर्म अमल हो गए हैं। जराये के मुताबिक जखीरा अंदोजों ने फ्लोर मिल्स को गंदम फराहमी रोक दी है, जिसके बायस सूबे भर में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने सूरत हाल का नोटिस लेते हुए जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि जहीरा की गई गंदम तहवील में लेने का फैसला किया गया है और हुकूमत इस गंदम की कीमत जो है 3000 रुपए फी मन अदा करेगी। ज़राए के मुताबिक नई फसल की आमद और वाफर पैदावार के बावजूद गंदम की जो सरकारी नर्क है वो 3500 रुपए फी मन पर दस्तयाब नहीं है, जबकि ओपन मार्केट में गंदम 4000 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है। गंदम की किल्लत के बायस फ्लोर मिल्स मालिकान शदीद परेशानी का शिकार है। आटे की कीमतों में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानब से 10 किलो आटे, जबकि हुकूमत पंजाब ने जखीरा अंदोजों से गंदम तहवील में लेने का भी फैसला कर लिया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें इस बारे में अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलें और आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर म्यो अस्पताल, जनरल अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल और जनाह अस्पताल बारे खबरों का मुआयना किया गया। तमाम अस्पतालों ने इलाज मुआवजे के दादो शुमार से मुतल्लिक हकाइक बयान कर दिए। म्यो, जनरल, चिल्ड्रन और जनाह अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर हजारों मरीजों को इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। ताहम अस्पतालों में सर्जरीज में ताखीर, अद्वियात की किल्लत और टेस्टों की अदम दस्तयाबी से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं, हकाइक से मुनाफी और मन गलत हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का बेहतर इलाज मौजूदा हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। ताहम महकमा सेहत अस्पतालों में इलाज मुआवजे की दस्तयाबी और म्यार को मुसलसल मोनीटर कर रहा है। इस पर जाने के नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर से। जी नईम अनवर, बताइएगा अस्पतालों का क्या मामला सामने आया है? हाँ जी बिल्कुल ही, सोशल मीडिया पर म्यू हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल और जना हॉस्पिटल बारे खबरों का मामला है। तमाम अस्पतालों ने इलाज मुआवजा के अदाद-ओ-शुमार से मुतल्लिक हकायक साफ और शफाफ बयान कर दिए हैं। न्यू जनरल, चिल्ड्रन और जना हॉस्पिटल में रोजाना की बुनियाद पर हजारों मरीजों को इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अस्पतालों में सर्जरीज में ताखीर, अद्वियात की किल्लत और टेस्टों की अदम दस्तयाबी से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद, हकायक से मुनाफी और मन घड़त हैं। सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों का बेहतर इलाज मुआवजा हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। महकमा सेहत अस्पतालों में इलाज मुआवजे की दस्तयाबी और मेयार को मुसलसल मॉनिटर भी कर रहा है। जबकि महकमा सेहत अस्पतालों में इलाज मुआवजे की दस्तयाबी और मेयार को मुसलसल मॉनिटर कर रहा है। आपको बताते चलें कि नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रुक करेंगे शहर कायद का, जहां कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के बारे में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। जराये का कहना है कि अनमोल पिंकी को नवाब टाउन लाहौर से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया। कराची पुलिस के गार्डन में छापे पर सवालात उठ गए। मंशियात स्मगलर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के मामले में नया मोड़ आ गया। पिंकी लाहौर में बैठकर कराची समेत पूरे मुल्क में नेटवर्क चलाती रही, जबकि पुलिस को कानो कान खबर न हुई, लेकिन मंशियात पर काम करने वाले हसास अदारे इस तक पहुंच गए। पिंकी को व्हाट्सएप ऑन होने की वजह से लाहौर से ट्रेस किया गया। हसास अदारों ने अनमोल पिंकी को लाहौर से गिरफ्तार करके कराची पुलिस के हवाले कर दिया। अनमोल पिंकी मंशियात के मुकदमात में कराची पुलिस को मतलूब थी। ताहम कराची पुलिस के गार्डन में फ्लैट पर छापा मारकर अनमोल पिंकी को गिरफ्तार करने के बयान पर सवालात उठ गए। इसी पर जाने के नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली से। जी अहमद अली, बताइएगा इस मामले में क्या नया मोड़ आया है?
जी बिल्कुल, पिंकी का जुडिशल 3 रोज़ा जो रिमांड वो सिंध पुलिस ने हासिल कर लिया है, लेकिन ये अजीब सी बात है कि कराची में गार्डन के इलाके से जिसकी गिरफ्तारी हुई है उस पर सिंध पुलिस की कारकर्दगी पे सवाल भी उठ गया है, क्योंकि इसको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, जो कि एक वफाकी हसास इदारे ने गिरफ्तार किया था, और ये 15-20 साल से मंशियात सप्लाई कर रही थी पूरे कराची में, और पुलिस को कानो कान खबर ना हुई। व्हाट्सएप होने की वजह से वफाकी हसास इदारे ने इसको लाहौर से ट्रेस किया है, जो हसास इदारे ने इसको मुंतकिल किया है, सिंध पुलिस के हवाले किया है। उसके बाद गार्डन से गिरफ्तारी जाहिर की गई है। बिल्कुल ये एक नया मोड़ कह सकते हैं इसको, कि इस पे सवालात भी उठ रहे हैं कि जो लाहौर से गिरफ्तार किया गया और पूरे कराची में नेटवर्क काफ़ी अरसे से चला रही थी, उसका खुद का ये कहना था, जो वीडियो बयान आया है, कि करोड़ों अरबों रुपए की जो है वो मंशा सप्लाई करती थी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में तलबा तालबात को, लेकिन सिंध पुलिस इससे बेखबर रही और इसको गिरफ्तार करने की कोशिशों में जो है वो सिंध पुलिस का कोई किरदार नहीं था। जो वफाकी हसास इदारे ने इसको लाहौर से गिरफ्तार किया है, नवाब टाउन के इलाके में ही रहती थी, साबिक पुलिस ऑफिसर की बीवी थी ये, और ये वहीं मंशियात बनाती थी और एक नई मंशियात का तजुर्बा भी कर रही थी, जो कि तकरीबन कंप्लीट हो गया था, और अब ये वो भी सप्लाई करने की उस पर थी कि हसास इदारे ने इसको जा लिया। जी, कराची पुलिस के गार्डन में फ्लैट पर छापे मारकर अनमोल पिंकी को गिरफ्तार करने के बयान पर सवालात भी उठ गए। नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली इस मामले में हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे चलते हैं आपको बताएं कि ईरान में मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला 74वें रोज भी जारी है। हुकाम के मुताबिक गुबरमदान बॉर्डर के जरिए गुज़िश्ता रोज एक मजदूर पाकिस्तान पहुंचा। गुबरमदान बॉर्डर के जरिए अब तक मजमूई तौर पर 3481 अफराद पाकिस्तान पहुंचे। तफ्तान बॉर्डर के जरिए अब तक 10,619 अफराद पाकिस्तान पहुंचे हैं, जबकि 28 फरवरी से अब तक गुबरमदान और तफ्तान बॉर्डर के जरिए मजमूई तौर पर 14,100 अफराद वतन वापस पहुंचे। पाकिस्तान पहुंचने वालों में मैन, ज़ायरीन, मजदूर, बिजनेसमैन और तलबा भी शामिल हैं। रुक करेंगे गुजरावाला का, जहां गुजरावाला में सीसीडी और जिला पुलिस के साथ मुबैना मुकाबलों में 2 खतरनाक डाकू हलाक जबकि 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। सीसीडी हुकाम के मुताबिक एक डाकू की शनाख्त आसिफ प्राशा के नाम से हुई है। हलाक मुलजिम लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा और गुजरात पुलिस को 74 मुकदमात में मतलूब था। हलाक होने वाले दूसरे डाकू की शनाख्त शान अरफ बोला के नाम से हुई है, जो थाना ततले अली पुलिस मुकाबले के दौरान मारा गया। हलाक मुलजिम अगवा, डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलविस था। इस तरह गुजरावाला के इलाके धले और सब्जी मंडी पुलिस ने 2 मुलजिमान को मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें कि हलाक होने वाले दूसरे डाकू की शनाख्त शान अरफ बोला के नाम से हुई है, जो थाना ततले आली पुलिस मुकाबले के दौरान मारा गया। हलाक मुलजिम अगवा, डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलविस था, जबकि इसी तरह गुजरावाला के इलाके धले और सब्जी मंडी पुलिस ने 2 मुलजिमान को मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। इसी पर जाने की ब्यूरो चीफ गुजरावाला राजा अफजाल अजीज से। जी राजा अफजाल, बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, गुजरावाला में सीसीडी और जिला पुलिस के साथ मुबैना मुकाबलों में 2 खतरनाक डाकू हलाक जबकि 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। सीसीडी हुकाम के मुताबिक 1 हलाक डाकू की शनाख्त आसिफ प्राचा के नाम से हुई। हलाक मुलजिम लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा और गुजरात पुलिस को 76 मुकदमात में मतलूब था। हलाक होने वाले दूसरे डाकू की शनाख्त शान उर्फ बोला के नाम से हुई है, जो थाना ततले वाली पुलिस मुकाबले के दौरान मारा गया। हलाक मुलजिम डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलव्वस था। इस तरह गुजरावाला के इलाका दुल्ले और सब्जी मंडी पुलिस ने 2 मुलजमान को मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। जी, 2 मुलजिमान को मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां हुई, जिसमें 7 दहशतगर्द हलाक और मेजर समेत 5 जवान शहीद हो गए। आपको बताते चलें कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड इतला पर बलूचिस्तान के जिला बाड़खान में ऑपरेशन किया और एक शरपसंद गिरोह का सुराग लगाकर उसे निशाना बनाया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि दौरान कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में फितनतुल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए और मेजर समेत 5 जवान वतन पर कुर्बान हुए।
शोहदा में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी, नायक फिदा हुसैन, सिपाही सोहेल अहमद, सिपाही जाकिर हुसैन, सिपाही मोहम्मद अयाज शामिल हैं, जबकि मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका के मौत भी बरामद हुआ है। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना था कि विजन अज़म इस्तेकाम के तहत पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों के दफा के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला बारखान के इलाके नौशम में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कार्रवाई के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले मेजर तौसीफ अहमद भट्टी और दीगर को इस्लाम में अकीदत पेश करते हुए कहा कि शोहदा ने वतन अजीज के अमन, सलामती और दफा के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम अपने बहादुर शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। सदर मुमलिकत ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने बारखान में जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने मेजर तौसीफ अहमद समेत 5 जवानों की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। मुराद अली शाह ने कहा कि जाम शहादत नोश करने वाले सपूत कौम का फ़ख्र हैं। वज़ीर आला सिंध ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और कहा कि गमज़दा खानदानों के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। मार का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में रंगारंग शो का इनेकाद किया गया, जिसमें नामूर गुलकारों ने बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश किया। तस्वीरी नुमाइश भी अवामी तवज्जो का मरकज बनी रही। मार का हक में बेमिसाल कामयाबियों के 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में अलहमरा आर्ट कौंसिल लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नामूर गुलकारों और फनकारों ने शिरकत की। पटियाला घराने के नामूर गायक उस्ताद हामिद अली खान और रागा बॉयज़ की शानदार परफॉर्मेंस ने शो को 4 चांद लगा दिए। मारूफ गुलकारों ने मिली नगमों के जरिए वतन के सपूतों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में शरीक अफराद का कहना था कि बहादुर अफवाज ने दुश्मन को नाको चने चुभवाए और वो तारीख रकम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। दूसरी जानिब CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत करते सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना ने कहा है कि मवेशी मंडियों में व्यापारियों और शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। मंशियात की सप्लाई चेन में मुलविस अनासिर को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। शहर में गुटखा फरोशी के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म देते CCPO लाहौर ने मजीद कहा कि महकमा पुलिस में करप्शन की कतई गुंजाइश नहीं। मुतलका SOP जिम्मेदार होगा। पतंगबाजी पर 0 टॉलरेंस, खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाइयां होंगी। इसी के साथ साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाजत दीजिए। मजीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज।